یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ گھومتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میں زمین سے کئی فٹ اچھل کر قالین پر جا پڑا۔ وہ کسی قدر مضطرب ہو گیا۔ کیا واقعی تم پاکستانی ہو؟ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ ملر نے کتنی بڑی دغا کی تھی مجھ سے، لیکن یہ اس لیے عام سی بات تھی کہ اس کا تعلق یہودی قوم سے تھا۔ میں جرائم کی زندگی کا انسان نہیں تھا، اس لیے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اس زندگی میں آنے کے بعد مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ کسی پر اعتماد کر کے خود کو بے بس کر لینا شرمندگی کی بات ہے۔ مجھے پہلا موقع ملتے ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ یہ اندازہ لگا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تمام افراد دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، غالباً میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور پھر ان میں سے ایک نے کسی کو آواز دی۔ اس بار اس طویل کمرے کے عقبی دروازے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ نہایت بدحیت شخص تھا۔ گوشت کے تودے اس کے جسم پر جمے ہوئے تھے، ناک چپٹی تھی اور آنکھیں بہت چھوٹی تھیں۔ صاف زرد رنگ کی وجہ سے اسے چینی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے بدن کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا تھا اور پیشانی پر سرخ پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ اندر آ کر وہ رکوع کے انداز میں جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، اوشویا، اسے لے جاؤ اور رات کو اپنی تحویل میں رکھو۔ خطرناک آدمی ہے، اس لیے خیال رکھنا۔ چینی نے گردن جھکائی اور میری طرف بڑھا، پھر اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ سخت کوشش کے بعد میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل میں نے ایسی بے بسی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں چل نہیں پاؤں گا، اور پھر چینی نے نہایت حقارت سے مجھے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اسی دروازے میں داخل ہو گیا جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا۔ یہ بھی ایک روشن راہداری تھی اور آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں صرف ایک مسہری پڑی ہوئی تھی۔ چینی نے مجھے اس مسہری پر اچھال دیا اور نرم گدے پر میں نے کئی جھٹکے کھائے۔ چینی نے صاف انگریزی میں کہا، خیال رہے کہ میں باہر موجود ہوں، اس لیے فرار کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس کی آواز اس کے تنوتوش کی بنسبت بہت باریک تھی۔ دوسری بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ گوشت کی چٹان ہونے کے باوجود وہ بے حد پھرتیلا تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں مسہری پر پڑا اپنے بدن کے دوران خون کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پورے بدن میں اب بھی سنسنی تھی جو آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی۔ ان غیر متوقع واقعات نے پہلے تو ذہن کو غصے سے تاریک کر دیا تھا، لیکن جوں جوں حواس بحال ہو رہے تھے میں اس صورتحال پر غور کرنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا۔ میں ان کا دشمن ہوں اور دشمن کے ساتھ ہر بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے۔ پھر غصہ کیسا؟ ملر بھی کوئی شریف انسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہودی بھی تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ رہ گئی پینی کی بات تو وہ لڑکی ان واقعات سے قطعی ناواقف تھی، چنانچہ میں اس معاملے کی حد تک اسے بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ ساری باتیں بعد از وقت تھیں۔ زندگی موت کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں یہودی فطرت سے واقف تھا۔ میرے حصول کے لیے انہیں بھاری رقم ادا کرنی پڑی تھی۔ یہ رقم اس لیے نہیں ادا کی گئی ہوگی کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے مجھے نہایت نیک نفسی کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیں، بلکہ وہ یقیناً میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں گے جو ان کے اندر سلگتی ہوئی انتقام کی آگ بجھا دے گا۔ حالات بے حد خراب ہو گئے تھے اور اب میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے اس چینی نے ناشتہ دیا جو ایک پیالی چائے اور سینڈوچز پر مشتمل تھا۔ میں نے ناشتہ قبول کر لیا۔ چینی نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ پھر دن کے 11 بجے کے قریب اس چینی نے دوبارہ میرے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ اس نے کھردری آواز میں کہا، چلو باہر چلو، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک اور ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں 10-12 افراد موجود تھے جن میں سے میں نے اس بوڑھے کو پہچان لیا جس نے ملر کو رقم دی تھی۔ باقی چہرے اجنبی تھے۔ 2 بہت زیادہ معمر یہودی بھی تھے جو لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ بوڑھے نے تقریر کے انداز میں کہا، یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ 4 یہودی نوجوانوں کے قتل کا انتقام صرف اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ جواب میں اسے قتل کر دیا جائے۔ انتقام کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس سے ہمارے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ ایک لمبے چوغے والے نے کہا، فی الوقت اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے پاس سے کاٹ لیے جائیں۔ بوڑھے نے کہا، میں دست بستہ عرض کروں گا معزز بزرگ کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی اس طرح فوری طور پر موت واقع ہو جائے۔
इस तरह हम उन दिल जलों की आरजू पूरी नहीं कर सकेंगे जिन्हें हमने सैन फ्रांसिस्को से बुलाया है। दूसरे बूढ़े ने कहा, अगर ये बात है तो ठीक है। फिर वो चीनी ओशोया से मुखातिब होकर बोला, ओशोया, इसकी इब्तिदाई खातिर मदारत करो। जवाब में ओशोया ने गर्दन झुका दी। वो तमाम अफराद पीछे हटकर दीवार से जा लगे और मैं उस बड़े हॉल के दरमियान तन्हा रह गया। मुझसे चंद फुट के फासले पर ओशोया था जो अपनी कमीज उतार रहा था। उसका ऊपरी बदन बेलिबास हो गया और गोश्त के तोदे नजर आने लगे। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और अपनी छोटी सुर्ख आंखों से मुझे घूरने लगा। फिर यकयक उसने हलक से अजीब आवाजें निकाली और फजा में लातें चलाने लगा। वो बड़ी तेज रफ्तारी से अपने बदन को फजा में जुम्बिश दे रहा था। ये मंजर खतरनाक था। इतने मोटे आदमी से इस फुर्ती की तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन मैं भी होशियार हो गया। इतनी खामोशी से तो नहीं पिटूंगा, मैंने दिल में सोचा और ओशोया पर निगाहें जमाती। चंद साद की बेमकसद उछल कूद के बाद अचानक उसने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन मैं बर्क की तरह कौंध कर उसकी गिरफ्त से निकल गया। वो काफी जोर से गिरा, लेकिन नीचे कालीन था इसलिए चोट न लगी। दूसरे लम्हे वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब उसके होंठ भिंच गए थे और चेहरा चिकंदर की तरह सुर्ख हो गया था। जमीन से उठकर वो पहले के से ही अंदाज में दोबारा उछल कूद करने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इस बार मैं कोई मौसर कार्रवाई करना चाहता था, चुनाचे मैं गैर महसूस अंदाज में दीवार के करीब पहुंच गया। ओशोया मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ओशोया बेवकूफ नहीं था। इस बार उसने मोहतात होकर हमला किया। उसे अंदाजा हो गया था कि अकब में दीवार है और अंदाजे की गलती उसकी नाक और दांत बराबर कर सकती है। चुनाचे जूं ही मैंने जगह खाली की, उसने इत्मीनान से दोनों हाथ दीवार से टिकाए और पूरी कुव्वत से घूम गया। घूमते ही उसने मेरी कमर में हाथ डाला और फिर मैं जमीन से कई फुट उछल कर कालीन पर जा पड़ा। उस बेपनाह ताकतवर इंसान के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि कालीन पर गिरा था, लेकिन मजा आ गया था। नाक छिल गई थी और शायद नक्सीर भी फूट गई थी। खून के कतरे मेरी कमीज पर गिरने लगे, लेकिन मैंने खड़े होने में देर न लगाई। दफतन वही बूढ़ा करख्त आवाज में चीखा, ओशोया। मेरी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। उसके अकब में जो बूढ़ा खड़ा हुआ था, उसके हाथ में स्याह रंग की एक छड़ी दबी हुई थी, जिसकी हत्थी ऊपर से मुड़ी हुई और काफी मोटी थी। मेरी आंखों में चमक सी आ गई। जिंदगी तो जानी है, फिर मुसलमान की तरह क्यों न मरा जाए, मैंने सोचा। बूढ़े की आवाज ने जैसे ओशोया को जगा दिया। वो फजा में कलाबाजियां खाता हुआ फिर मुझ पर लपका और इस बार उसके हाथ ने मेरे जबड़े ठीक कर दिए। यूं लगा जैसे बायां जबड़ा टूट गया हो। मैं फिर उछल कर बुरी तरह गिरा था, लेकिन जबड़े की तकलीफ भूलकर मैं बेहद फुर्ती से उठा और मैंने बूढ़े पर छलांग लगा दी। मेरी छलांग जची तुली थी, चुनाचे छड़ी मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे उल्टी तरफ से पकड़ा और इस बार मैंने ओशोया के हमले का इंतजार न किया। मैं खुद ही दीवानावार उस पर टूट पड़ा। मेरा पहला ही वार ओशोया की पेशानी पर पड़ा। ओशोया की पेशानी तड़क गई और खून उसकी आंखों पर बहने लगा। इस सूरत हाल से खौफजदा होकर यहूदी बूढ़े चीखते हुए बाहर भाग गए। अलबत्ता ओशोया आंखों से खून पोंछता हुआ पागलों की तरह मुझ पर झपटा। अगर खून की चादर उसकी आंखों में न रेंग गई होती तो शायद वो दीवानगी के आलम में मेरी हड्डियां ही पीस कर रख देता, मगर इस सूरत हाल से मुझे फायदा हासिल हो गया। मैंने कई बार उसके शाने बाजुओं और बदन के दूसरे हिस्सों पर किए और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस बार जो मैंने उसके छड़ी मारी तो उसने बायां पांव ऊपर उठाया। ये बेमकसद नहीं था, उसने जुजित्सु के मखसूस अंदाज में पांव ऊपर उठाया था। चुनाचे छड़ी उसके पांव पर पड़कर टूट गई और अब मेरे हाथ में उसका पतला हिस्सा रह गया था जो बेकार था। ओशोया ने स्वीप किया और मेरे पांव उसके पैरों में उलझ गए। इस बार मैं गिरा तो फिर उसने मुझे उठने न दिया। मेरी गर्दन पर हाथ रखकर उसने ऐसा दबाव डाला कि यकयक मेरी आंखों में परछाइयां सी रक्स करने लगी और फिर मुझे होश न रहा। होश आया तो रात हो चुकी थी। मैं अपने उसी कैद खाने में मसहरी पर पड़ा हुआ था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। बदन के बहुत से हिस्से दुख रहे थे, खास तौर पर जबड़ा। जबड़े पर हाथ फेरा तो सूजा हुआ मालूम हुआ। जाहिर है यही होना था। ओशोया देव था, जान ही न जाने किस तरह बच गई। मैं कराहता हुआ मसहरी से नीचे उतर आया। शिद्दत की प्यास लग रही थी, इसलिए दरवाजे के करीब जाकर मैंने जोर जोर से उसे बजाया। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुल गया। सामने ओशोया मौजूद था। उसकी पेशानी पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी जिस पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मुझे देखकर उसकी छोटी छोटी आंखों में मुस्कुराहट उभरी। मैंने कहा, पानी मिल सकेगा, मुझे प्यास लगी है। और उसने अपने मखसूस अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर दरवाजा बंद करके वो चला गया। खासी देर में वापस आया था, लेकिन उसके हाथों में ट्रे थी और ट्रे में खाने पीने की चीजों के अलावा कॉफी की एक प्याली भी थी।
वो नरम आवाज में बोला, पानी पीने से पहले कुछ खा लो, भूखे हो गए। और मुझे उसके बदले हुए अंदाज पर हैरत हुई। उसे तो मुझसे नफरत का सलूक करना चाहिए था। मैंने भी खुश मिजाजी से कहा, शुक्रिया ओशोया, खास तौर से इस कॉफी के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने ट्रे उसके हाथ से ले ली। उसने पूछा, तंबाकू पीते हो? मैंने जवाब दिया नहीं और खाने की ट्रे लेकर मसहरी पर आ बैठा। ओशोया दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ गया था, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर खाने पर टूट पड़ा। भूख भी खूब लग रही थी, इसलिए आन की आन में सारी चीजें साफ कर गया। ओशोया दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कॉफी खत्म की तो वो बोला, और कॉफी दरकार है? मैंने कहा, नहीं ओशोया, लेकिन तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वो बोला, जाती तौर पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तवील अरसे के बाद किसी से मुकाबला हुआ है, वरना चूहे ही हाथ आते हैं। मेरा ख्याल है अगर तुम मार्शल आर्ट से वाकिफ होते तो बेहद खतरनाक इंसान साबित होते। देखो ना, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम जिसका नमक खाओगे उसके अहकामात की तकमील जरूर करोगे। मैंने कहा, बेशक ओशोया, क्या तुम इनके मुलाजिम हो? वो बोला, हाँ, मिस्टर विद्यान मेरे आका हैं। मैंने पूछा, ये उन्हीं का मकान है? ओशोया ने मुख्तसरन कहा, हाँ। मैंने एक और सवाल किया, कौन कौन रहता है यहाँ? वो बोला, सिर्फ मैं। कभी कभी वो लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं। मैंने पूछा, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? ओशोया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जंग करके निकल जाने के चक्कर में हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं इतना बोदा नहीं हूँ। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। वैसे तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो कोशिश कर लो। इस वक्त इस मकान में मेरे अलावा और कोई नहीं। मैंने कहा, एक चीनी एक यहूदी का मुलाजिम कैसे हो गया? चीनी भी तो यहूदियों को पसंद नहीं करते। वो बोला, अमेरिका में रहकर यहूदियों से दुश्मनी मुमकिन नहीं है, और फिर मेरे उस्ताद मोहतरम के मिस्टर विद्यान से गहरे ताल्लुकात हैं। उन्हीं के हुक्म से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। उस्ताद अगर कहें कि समंदर में छलांग लगा दो, तो फिर समंदर मेरे लिए एक मुकद्दस जगह हो जाती है। वैसे तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? मैंने उसे अपनी शहरियत के बारे में बताया। कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने इस तरफ से हाथ मलते हुए कहा, ओ। वो किसी कदर मुस्तरिब हो गया। क्या वाकई तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों परेशान हो गए हो? वो बोला, पाकिस्तानी तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन मिस्टर विद्यान से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई? फिर मैंने ओशोया को उस दुश्मनी की पूरी तफसील बता दी। ओशोया लम्हा बलम्हा परेशान होता जा रहा था। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, तब तो मैंने अच्छा ही किया। जिस वक्त तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हाथों में उठाकर बाहर ला रहा था, तो मिस्टर विद्यान ने हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें गर्दन दबाकर हलाक कर दूं। अगर तुम होश में होते तो मुझे उनके हुक्म की तकमील करनी पड़ती, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें काबू में रखूंगा, और मैंने माजरत की कि मैं किसी बेहोश इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों कत्ल नहीं कर सकते? ओशोया ने जवाब दिया, उस्ताद का हुक्म है। मैंने कहा, तुम्हारा उस्ताद भी कोई आला ज़र्फ इंसान मालूम होता है। कौन है वो, और क्या नाम है उसका? वो बोला, जोशू ओलाइव, मार्शल आर्ट्स का माहिर है। हॉलीवुड में तुम्हें उसका सानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मार्शल आर्ट्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, सिर्फ इसलिए कि उसे सफेद फार्मों को ये आर्ट सिखाना पड़ेगा, और कौन जाने उनमें कौन कितना ज़र्फ रखता है। मैंने ज़ेर लब दोहराया, जोशू ओलाइव। ओशोया बोला, तुमने उसका नाम सुना है? मैंने कहा, हाँ, सैन फ्रांसिस्को में मेरे चंद दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। मिस्टर काइशिन, उनकी बेटी लुइशी, बेटे होशिन और हैक्शिन मेरे गहरे दोस्त हैं। मिस्टर काइशिन ने कहा था कि हॉलीवुड में मैं जोशू से मिलूं, वो मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद करेंगे, लेकिन हालात ने मुझे उसकी मोहलत नहीं दी। ओशोया फिर बुरी तरह मुस्तरिब नजर आया। वो बेख्तियार बोला, क्या नाम लिए तुमने? काइशिन, लुइशी, होशिन? मैंने कहा, हाँ, यही तीनों नाम लिए थे मैंने। ओशोया ने पूछा, उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? मैंने जवाब दिया, चाइना टाउन, सैन फ्रांसिस्को में। ओशोया हैरत ज़दा नजर आया। बोला, ओ, वो तुम्हारे दोस्त थे? मैंने कहा, गहरे दोस्त, जिन्हें मैं कभी जिंदगी में फरामोश नहीं कर सकूंगा। ओशोया ने पूछा, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जोशू से मदद लो? मैंने कहा, बल्कि मिस्टर काइशन ने यह भी कहा था कि वो मेरे बारे में जोशू को इत्तला दे देंगे, और मुझे यकीन है कि ये इत्तला उन तक पहुंच गई होगी। फिर उसे देखकर मैंने कहा, लेकिन तुम अचानक क्यों मुस्तरिब हो गए हो? ओशोया ने परेशान होकर कहा, ये लोग जिनका तुमने नाम लिया है मेरे अजीज हैं। काइशन मेरी माँ का भाई है, और उसी ने मुझे उस्ताद मोहतरम जोशू के पास भेजा था। क्या ये इस तरह की बात नहीं है कि तुमसे मेरे लातादाद रिश्ते निकलते चले आ रहे हैं? आखिरी नाम मेरे उस्ताद का है, जिनके बाद मेरे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब बताओ, अगर उन्होंने तुम्हारी मौत के सिलसिले में मुझे इस्तेमाल करना चाहा तो क्या होगा? मैंने पूछा, वो तमाम लोग कहाँ गए? वो बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उमूमन वो लोग इस मकान में नहीं रहते, बस इसकी देखभाल के लिए मैं ही यहाँ रहता हूँ। और इस वक्त वो सब सैन फ्रांसिस्को से उन लोगों को बुलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं जिनके रिश्तेदारों को तुमने कत्ल किया है।
वो चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में तुम्हें कत्ल किया जाए ताकि उनके दिल की भड़ास भी निकल जाए। ये लोग किसी तौर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जरा मुख्तलिफ होगी। मुमकिन है हुकूमत अमेरिका तुम्हें मौत की सजा भी दे दे, लेकिन ये सजा उनकी पसंद के मुताबिक नहीं होगी। चुनाचे वो अपने तौर पर ही तुम्हारा फैसला करना चाहते हैं। उनके मजहबी अकायद के मुताबिक तुम्हारी अजियतनाक मौत बहुत जरूरी है। ओशोया ने बताया और फिर किसी ख्याल के तहत उछल कर खड़ा हो गया। बोला, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से है जो मेरे लिए बेहद मोहतरम हैं। जरा ठहरो, बल्कि यूं करो, मेरे साथ आओ। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक छोटी सी जगानगत निकल आई है। मुझे शर्मिंदा होने का मौका मत देना। उसने हाथ उठाकर कहा और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके साथ साथ चल पड़ा। तब वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां फोन रखा हुआ था। उसने फोन पर चंद नंबर डायल किए और मुझे फोन के नजदीक ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए चंद साथ इंतजार करता रहा और फिर बोला, हेलो, ओशोया बोल रहा है, उस्ताद मोहतरम जोशू से बात करना है। फिर उसने बड़े एहतराम से गर्दन झुकाई और दोबारा बोला, उस्ताद मोहतरम, आपका खादिम, आपका गुलाम ओशोया बात कर रहा है। हाँ, एक बहुत अहम मसला आन पड़ा है, बड़ा ही परेशान कुन। और जब किसी परेशानी का मौका आ जाता है तो उस्ताद मोहतरम मेरी रहनुमाई करते हैं। मैं इस वक्त भी आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। बात यह है कि एक शख्स बड़ी मुश्किलात के बाद गिरफ्तार होकर मेरे आका के पास आया है और मेरा आका उसे कत्ल कर देना चाहता है। उस शख्स का नाम अली जार खान है और ये सैन फ्रांसिस्को में बर्कली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसने 4। ओशोया अचानक रुक गया। चंद लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। फिर बोला, हाँ, मेरे बिल्कुल नजदीक मौजूद है, लेकिन उस्ताद मोहतरम क्या? अच्छा, मैं टेलीफोन उसे देता हूँ, उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और टेलीफोन मेरे हाथ में देते हुए बोला, मेरे उस्ताद मोहतरम जोशू। मैंने टेलीफोन का रिसीवर ओशोया के हाथ से लेकर कान से लगा लिया और माउथपीस में बोला, मैं अली जार खान बोल रहा हूँ। एक नर्म और तशवीशनाक आवाज उभरी, ओ लड़के, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने पूछा, क्या आपको मिस्टर काइशिन का पैगाम मिल चुका है मिस्टर जोशू? वो बोला, हाँ, ये बात बहुत पहले की है, लेकिन तुमने मुझे बेहद परेशान कर दिया। आखिर तुम इन लोगों के हत्थे किस तरह चढ़ गए? ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा, तवील दास्तान है मिस्टर जोशू, बस यूं समझ लें कि मेरे खिलाफ एक इंतहाई गहरी साजिश की गई और इत्तेफाकिया तौर पर मैं ऐसे लोगों के हाथ लग गया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो बोला, मुझे बेहद अफसोस है, मेरा दोस्त काइशिन क्या सोचेगा? तुम हॉलीवुड में आए और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, लेकिन फिक्रमंद न हो, जोशू तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तुम परेशान मत हो और मेरे पास पूरे एतमाद से पहुंच जाओ। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोशू, लेकिन मेरे वहां पहुंचने का क्या तरीका होगा? जोशू चंद लम्हात के लिए किसी सोच में डूब गया। फिर बोला, टेलीफोन का रिसीवर ओशोया को दो। मैंने शाने हिलाकर रिसीवर ओशोया को दे दिया। दूसरी तरफ से ओशोया को कुछ हिदायत मिलती रही और फिर उसने गर्दन हिला दी। बोला, उस्ताद मोहतरम, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं हुक्म की तामील करूंगा। वो चंद लम्हात के लिए रुका और दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। फिर उसने गर्दन हिला दी। बोला, ठीक है, मगर ये तो बताएं कि इससे मेरी जात पर तो कोई ऐसा हर्फ नहीं आएगा जो मुझे अपनी ही निगाहों में जलील कर दे। चंद लम्हात दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद उसने एक बार फिर अपने सर को जुम्बिश दी। फिर कहा, ठीक है, जाहिर है जो उस्ताद मोहतरम कहेंगे वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात होगी, तो फिर मैं वही करूंगा जिसकी मुझे उस्ताद मोहतरम की तरफ से हिदायत मिली है। वो फिर रुककर दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगा और फिर उसने जोर जोर से गर्दन हिलाई। बोला, इसके अलावा मेरे जहन में और कोई तरद्दुद नहीं आया उस्ताद मोहतरम। ठीक है, शुक्रिया। ओशोया ने रिसीवर रख दिया। उसकी छोटी छोटी आंखों से परेशानी अयां थी, जैसे वो अभी तक किसी उलझन का शिकार हो। फिर उसने जोर से गर्दन हिलाई और बड़बड़ाया, जिसने इस काबिल किया उसकी जात सबसे मोहतरम है। आओ उठो, अपने कमरे में चलो। लेकिन सुनो ओशोया, अब तुम्हारा पहरेदार नहीं दोस्त है। खुद को उस वक्त तक कैदी मत समझना जब तक विद्यान यहाँ नहीं आ जाए। बेहतर होगा वो तन्हा ही यहाँ आए। ओशोया जैसे खुद से मुखातिब था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो शदीद जहनी उलझन का शिकार है और मैं उसकी उलझन के बारे में जानना चाहता था। चुनाचे कमरे में जाकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है ओशोया? वो बोला, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर उनके पास पहुंच जाऊं और तुम्हें मौका दूं कि तुम विद्यान को कत्ल कर दो। मेरे जहन में ये उलझन है कि मैं विद्यान को आका कहता हूं और उसका नमक खार रहा हूं, बस ये बात है। लेकिन जोशू मेरा उस्ताद है, उसने मेरी तकमील की है, इसलिए मैं उसके हुक्म की तामील करूंगा। तो सुनो अली, जब विद्यान आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम उसे खत्म कर देना।
इस दौरान मैं यहाँ से चलने के इंतजामात कर लूंगा और तुम्हें जोशुआ के पास ले चलूंगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, काश मैं पहले ही जोशुआ से मुलाकात कर लेता। थोड़ी देर तक ओशोया खामोश अपने ख्यालात में खोया रहा, फिर वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।